एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं गैजेट कंपनी क्वेश्चन और ये कॉपलान किट का है। सो इफ यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर पीएम ये क्वेश्चन यूजफुल रहेगा। सो बेसिकली ये क्वेश्चन अगर देखा जाए एबीसी कॉस्टिंग जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग जो हम लोग ने पढ़ा था उस टॉपिक से रिलेटेड है। इफ यू गाइस नो द टॉपिक वेरी वेल आप इस टाइप के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, ट्रस्ट मी। सो लेट्स हैव फर्स्ट बैकग्राउंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो बेसिकली गैजेट कंपनी three kinds of product used to produce A, B and C, all made from same material. Until now it has used traditional absorption costing to allocate overhead to its product. The company is now considering an activity-based costing system in the hope that it will improve profitability. Information for three products for the last year is as follows. So basically company previously they are using the traditional based costing and now they have been switching their costing technique to the ABC one. And if you guys remember the concept, ABC will be applicable where there is huge amount of overhead, where there is company is producing a different kind of product. In that case ABC costing will be useful. Otherwise we need to compare the cost and benefit. If we are receiving the benefit is more than the cost, obviously we should go for the new costing system. But if the cost is more, like implementation cost, of course we need to train our employee. Obviously in ABC costing there is cost driver and cost pool concept. We need to train employee regarding this. Also what kind of information that we need to also make aware of our employee that we should have this kind of data. So obviously there is some kind of cost involved. So if cost is more than benefit, there is no point of adopting the new system. Okay, so they have provided us production and sales units, so assuming the same. So for A, B and C also they provide a selling price, direct material cost, direct labor cost. See, this is the direct material cost per unit, okay, but direct labor is not given in the form of monetary value. They have only provided the figure that this much hour is required, this much labor hour is required to produce 1 unit of product A. Like suppose for A they need 0.1 hours of labor to produce 1 unit of A. So if we are producing 15,000 units, we need to multiply that how much labor is required, labor hour is required if we are producing 15,000 units. It's simple unitary method. So if labor is taking 0.1 hours to produce 1 unit, so in order to produce 1500 unit, 15,000 unit, we need a 1500 of labor hours. Okay, so we will so it's very important to identify this value is not in the monetary figure. However, for the material they have provided in terms of monetary value, but for labor they didn't provide. So sometime in exam, if question asks to calculate the full production cost and we are in so hurry, our mind obviously read everything so fast, we forget that these are this figure is not in the monetary terms, and we used to take this figure and calculate the full production cost, which is wrong. So it's very important. Okay, and now machine hours. Okay, so they have also provided number of production runs per annum, number of purchase order per annum, number of delivery to retailers per annum. Okay, and they have provided a labor cost. That means we are paying labor 14.80 for 1 hour. We are paying labor 14.80 for 1 hour. Okay, and they have also provided the breakdown of total overhead cost, which is figure is here. Okay, so now first question is, which of the following statements are true for gadget company? Okay, so here first statement says, under traditional absorption costing, using the production volume as a basis of apportionment, the overhead absorption rate is 4.34 per unit. So question is very simple. Question is saying that if we use traditional costing system, absorption costing system, and using the production volume, so what will be the OAR rate? So OAR rate
So question says to absorb overhead first. So overhead total figure, we need to first identify what is the total figure of overhead. Let me add of this all. So now 26,550 plus 66,400 plus 48,123 then plus 54,320. So now total overhead figure is 197. Where is calculator? 195,270. 195,270. This is the total overhead cost. Now what is the total production unit? So 18 plus 12, 30 plus 45. So 45,000. So now question says to absorb this overhead based on this unit. So now we will divide these two figure and we will get our OAR as per the traditional absorption costing system. 95270 divided by 45,000. The figure is, if we round it to the 2 decimal, it will be 4.34 and question has calculated the same. And it's very important to remember whether the figure provided by question, see whatever we have calculated the OAR, this is the figure just now we calculated using the calculator. This is in the dollar per unit because base figure is in terms of unit. So it's very important to have a look what is the base figure. So here the base is per unit, that's right. So for example, if you calculate 4.34, but in this question, in this statement, they mention 4.34 per hour. So obviously exam में जल्दी में what we will do, we will forget this line and we will choose this. Oh, statement 1 is correct. Why? Because figure has been matched. It's very important to read the requirement, to read the statement. So what if question says 4.34 per hour, and what we have calculated, we also calculated 4.34, but it is in the per unit because the base figure of the fraction is unit. So now the option 1 will not be correct if they have mentioned 4.34 per hour. So it's very important. Now in this case it is true, but this is a kind of mistake you can do in the exam. Okay, so 1 is correct. And once we know statement 1 is correct, so we need to use elimination technique here. Elimination technique means we are pretty much sure statement 1 is correct. We don't know about the 2 right now. So that means C and D will not be our answer. So now we can eliminate these two. Sorry, C and D. It's my mistake. D. Sorry, D will not be our answer. Okay. So D will be eliminated from the option. Either A, B or C will be our answer. Now let's move to B. Under ABC costing, product C would have 2.07 of machine running cost apportioned to each unit. Means dollar per unit. How much is the cost? 2.07. Alright, so let's move to the calculation. Let's calculate as per ABC what would be our machine running cost. So machine running cost is this much. Okay. So machine running cost will depend on machine hour. So what is the total machine hour? Let's calculate that first. So because in question they have already provided for each of the product how much machine hour is required to produce one unit. So if we talk about the product A, if we talk about product A, so how much unit we have produced? 15,000. And how much one unit is taking machine hour? How much one unit is taking machine? How much one unit of machine hour taking? 0.5. So this will give me 7,500 of machine hour. Okay. Then okay. We have B. So we produce 12,000 of B into sorry. 12,000 into machine hour is 0.7. It's better to open the Excel, I think.
Now it's from product A, it was 7,500 to 900 total. Now C. The total machine hour used is 3,200. Okay, so 32,100. So total machine hour is 32,100. Alright, so how did I get this figure? Just multiplying the machine hour per unit with the expected number of units produced for the each product. So we get, this is our machine hour. So now what is the machine running cost? What is the machine running cost? So machine running cost is 36,400. And what is the total number of machine hours we use to produce A, B and C? 32,100. And this gives us figure of 2.07. And exactly you can see the figure is matching. फिगर मैच हो रही है बी से, और आप एग्जाम में हड़बड़ में गड़बड़ कर बैठते हो ऐसे ही, बट ये रॉन्ग है. अब कैसे रॉन्ग है? देखो, जो मैंने ऊपर बताया था ना, वो चीज यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है. क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने क्या कहा? 2 पॉइंट, ओके, क्वेश्चन ने कहा 2.07 ऑफ मशीन रनिंग कॉस्ट अपोर्शन टू ईच यूनिट. मींस ये फिगर क्या चीज में है? डॉलर पर यूनिट में है. और जो हम लोग ने कैलकुलेट किया, जो अभी अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया, ये फिगर किस चीज में? ये डॉलर पर आवर में है, डॉलर पर मशीन आवर. अगर यूनिट में कैलकुलेट करना है, अगेन वी नीड टू मल्टीप्लाई विद द मशीन आवर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी, जो कि क्या है यहाँ पे 0.9. सो अगर हम लोग यहाँ पे 0.9 से मल्टीप्लाई करते हैं, नाउ आंसर इज 1.86. ये है डॉलर पर यूनिट. अभी मैंने जस्ट ऑप्शन ए में कहा था आपको, वही चीज यहाँ पे रिपीट हुआ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको देखना पड़ेगा ये डॉलर पर यूनिट है, डॉलर पर मशीन आवर है, डॉलर पर बेस में क्या है. जस्ट आपको चेक करना पड़ेगा. यू हैव टू चेक दिस, अदरवाइज ऐसे ही मिस्टेक होगा एंड यू विल बी लाइक आफ्टर गिविंग एग्जाम, अरे मैंने तो सब चीज करके आया था फिर भी फेल हो गई. सब चीज करके आते हैं, बट कुछ कुछ यही टेक्निक है जो बच्चे मिस करते हैं, एंड दिस मे बी द रीजन फॉर द फेलियर. Okay, so it's very important to read the requirement, especially for ABC costing. Variance is very important guys, very important. Variance तो मैं और कहूंगी, वेरियंस ऐसा टॉपिक है ना जहां से आप मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब कर सकते हो इफ यू गाइज नो द फॉर्मूला वेरी वेल. मेरा वीडियो देखो, वेरियंस का ऑलमोस्ट सेक्शन सी का क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, आप देखो. आप आउट ऑफ 20 मैक्सिमम मार्क कैलकुलेशन के लिए होते हैं, कैलकुलेशन भी इजी होता है, एकदम इजी. आप मेरा सारा वीडियो देखो, गारंटी देती हूँ आपको वेरिएंस में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कैलकुलेशन में. इतना का मैं श्योर हूँ, प्रीटी मच श्योर. आई नो कि मैंने क्या बनाया है. इनफैक्ट फॉर्मूला को कैसे लर्न करना उसका भी सेपरेट वीडियो है, ठीक है. सो इसलिए वेरिएंस हुआ, एबीसी, इन सब में ये चीज देखना जरूरी है, बिकॉज यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं. इवन दो दे नो द कांसेप्ट वेरी वेल, बट दे गॉट मिस्टेक एट दिस पॉइंट. ठीक है, दैट मीन्स हमारा 1 राइट है एंड बी इज द करेक्ट आंसर. ओके ओके, नाउ लेट्स मूव टू द बी. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फुल कॉस्ट per unit of product A under traditional observation costing using the direct labor as a basis for apportionment. ये बहुत इजी है. आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सो डायरेक्ट कॉस्ट हमारा दो है, एक तो मटेरियल और एक हमारा डायरेक्ट लेबर. सो किस प्रोडक्ट के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन, ये भी देखना बहुत जरूरी है. प्रोडक्ट ए के लिए पूछ रहा है. सो अगर डायरेक्ट कॉस्ट हम लोग देखा जाए तो मटेरियल का दे हैव प्रोवाइडेड इन द मॉनेटरी फिगर, डायरेक्ट लेबर का निकालना होगा. सो ये फिगर आप देखो, यहाँ पे भी एक मिस्टेक होता है. मैं देखो क्वेश्चन में मिस्टेक बता रही हूँ, क्वेश्चन बहुत इजी है, नो डाउट क्वेश्चन बहुत इजी है, बट यही सब मिस्टेक है जो आप एग्जाम में रिपीट करके फेल हो सकते हो. देखो यहाँ पे भी कैसे आपको मतलब एग्जामिनर घुमाएगा और आप घूम भी जाओगे 360 डिग्री पे. वो भी देखो, डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट, ठीक है. मीन्स ये फिगर क्या है आपका 0.1 आवर पर यूनिट. मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है. मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये आपका क्या है, ये आपका है आवर पर यूनिट, ठीक है. ये आपका क्या है, आवर पर यूनिट.
कॉस्ट दिया है, ये क्या चीज में हमारा, ये क्या है, डॉलर पर आवर। सो व्हाट आई मीन टू से, इसका बेस आवर है तो इसका भी बेस आवर, मतलब जो ऊपर का न्यूमरेटर पोर्शन है वो भी आवर में होना चाहिए। समटाइम दे विल गिव यू इन द मिनट, उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो नीचे वाले को आवर से मिनट में ले जाओ या तो ऊपर वाले को मिनट से आवर ले जाओ। सो चॉइस इज योर। ओके, यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं बच्चे। सो दिस इज द पॉइंट वेयर यू गाइज विल स्लिप एंड लूज द मार्क्स। ठीक है, सो हमारे पास दो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, जो एक मॉनेटरी टर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, दूसरा हम लोग को निकालना है। सो लेट्स कैलकुलेट। सो कितने आवर हम लोग आई मीन लेबर को कितने में पे करें, वी आर पेइंग 14.8 पर आवर, और प्रोडक्ट के कितना आवर यूज कर रहा है, 0.1 आवर यूज कर रहा है एक यूनिट बनाने के लिए। सो दैट मीन्स 1.48। सो हमारा लेबर के कॉस्ट क्या हो जाएगा, 1.48। अब ये क्या है हमारा, ये हमारा डॉलर पर यूनिट है। अब ये जो फिगर है ये हमारा डॉलर पर यूनिट है। ठीक है, सो एक ये हो गया, एक ये हो गया। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट मींस बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इसके बाद कोई भी कॉस्ट नहीं है। अब ये एनुअल ओवरहेड को इन्होंने बोला हुआ है कि आप डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे अपोर्शन करो, ये इन्होंने खुद बोला हुआ है। सो लेट्स कैलकुलेट हाउ मच टोटल आवर वी नीड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए, बी एंड सी। सो 0.1 इंटू 15,000 करेंगे, we will have 1500 labor hour required to produce 15,000 of product A। इसके बाद में 0.15 है, ये भी हमारा एक यूनिट के लिए लग रहा है लेबर आवर, और हम बी के लिए 12,000 बना रहे हैं। सो इट विल बी 1800। पहले 1500 था और ये 1800। सो टोटल कितना हो गया ए और बी के लिए 3300। नाउ फॉर सी, सी के लिए 18,000। सो नाउ प्लस 3300। तो ये करने पे हमारा टोटल लेबर आवर इज 6900। अब ये निकालने का रीजन क्या है ना, कि आपको जो ओवरहेड है, जो नीचे टोटल ओवरहेड है, उसको हम लोग को ये लेबर आवर के बेसिस में अपोर्शन करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो टोटल लेबर ओवरहेड फिगर है वो लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे टोटल लेबर आवर विच इज 6900। ठीक है, सो ये हमारा डॉलर पर लेबर आवर आ गया। और क्वेश्चन प्रोडक्ट ए के लिए पूछ रहा है। सो प्रोडक्ट ए के लिए कितना लेबर आवर यूज हुआ है, अगर हम लोग एक यूनिट बना रहे हैं तो इट्स 0.1। सो यहाँ पे अब इनटू 0.1 कर देंगे। सो वी हैव ए 2.83, ये ओवरहेड का है, और हमारे पास मटेरियल का कितना है 2.4, और हमारे पास डायरेक्ट लेबर कितना है 1.48। ये करने पे कितना कॉस्ट आया, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट इज 6.71। सो गाइज ये क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है। ट्रिकी कहाँ पे है, आपको ये चीज पता करना होगा कि हम लोग फुल कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो सारा कॉस्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वी नीड द फिगर इन डॉलर पर यूनिट। डॉलर पर आवर को ऐड नहीं करना है, दैट विल बी रॉन्ग। डॉलर पर यूनिट चाहिए। सो सारे मटेरियल का ऑलरेडी दे हैव प्रोवाइडेड इन द डॉलर पर यूनिट। हम लोगों ने लेबर का जस्ट निकाला बिकॉज ये फिगर था आवर पर यूनिट था, और ये फिगर था डॉलर पर आवर। मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर आवर कैंसिल होगा, और ये जो 1.48 आएगा दैट विल बी इन द डॉलर पर यूनिट। सिमिलरली ओवरहेड के केस में उन्होंने बोला, खुद से बोला, आप ओवरहेड को डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब कर दो। सो मैंने क्या किया, टोटल डायरेक्ट लेबर निकाला, आवर्स कितना लग रहा है फॉर प्रोड्यूसिंग ए, बी एंड सी, और टोटल ओवरहेड फिगर वी नो वेरी वेल। अभी इन दोनों को डिवाइड किया, इससे हमारा क्या आया, डॉलर पर लेबर आवर। अब ये फिगर लेके हम लोग फुल प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। व्हाई, बिकॉज वी नीड फिगर इन डॉलर पर यूनिट, वी नीड फिगर इन डॉलर पर यूनिट। अब देखो, जो यहाँ से हम ओवरहेड का कॉस्ट निकाला था वो हमारा था डॉलर, आपका था डॉलर पर लेबर आवर। ठीक है, डॉलर पर लेबर आवर। सो अब हम लोग ने मैंने क्या किया, प्रोडक्ट ए का लेबर आवर जो था ना, ये 0.1, ये 0.1 से मल्टीप्लाई किया। क्यों, क्योंकि ये किस फिगर में था, ये आवर पर यूनिट में था, ये आपका आवर पर यूनिट में था। अब इससे क्या हो गया, ये आवर आवर कैंसिल हो गया, और ये आपका आंसर डॉलर पर यूनिट में है, तब इसको हम लोग ऐड किए फुल प्रोडक्शन में। सो अभी आप देख सकते हो फिगर इज 6.71, जो कि हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है ना, ओके चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
नाउ सी क्या कहता है, कैलकुलेट द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट. Overhead cost means total cost using the activity based costing. So activity based costing के अकॉर्डिंग हमको प्रोडक्ट बी के लिए overhead cost निकालना है. So overhead cost अगर देखा जाए प्रोडक्ट बी के लिए निकालना है ना, तो सबसे पहले हम लोग को ओवरहेड कॉस्ट निकालना है प्रोडक्ट बी के लिए. तो सबसे पहले हम लोग एबीसी कॉस्टिंग में क्या करते हैं, कॉस्ट पुल और कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करते हैं. सो कॉस्ट पुल ऑलरेडी उन्होंने ब्रेक डाउन वाइज दिया हुआ है. सो नाउ कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. मशीन जो कॉस्ट हमारा टोटल 26,550 आया है, इसको कौन ड्राइव करेगा, कितना बार प्रोडक्शन रन हुआ है वो डिसाइड करेगा, है ना. सो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन फॉर ईच प्रोडक्ट दे हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड. सो वी विल ऐड दिस फिगर. सो 16 + 12 + 8. सो आपका कितना हो जाएगा, 20, 36. सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, इट्स वेरी सिंपल. देखो कोई पेन कॉपी लिए बिना हम लोग अच्छे से कर पा रहे हैं, है ना. सो अब ये हमारा कॉस्ट पूल हो गया, टोटल मशीन सेटअप कॉस्ट. इसको ड्राइव कौन करेगा, जितना बार प्रोडक्शन रन करेंगे उतना बार हम लोग मशीन को सेटअप करेंगे, ठीक है. सो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन विल बी द कॉस्ट ड्राइवर फॉर दिस पर्टिकुलर कॉस्ट पूल. अब नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन टोटल कितना बार रन हुआ है, टोटल रन हुआ है, सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है. हम लोग इन सबको ऐड करेंगे तो इट फिगर विल बी 36, ठीक है. सो हम लोग क्या करेंगे, इसको 36 से डिवाइड करेंगे, ठीक है. सो ये क्या आ जाएगा हमारा OAR. अभी बताऊंगी क्या करना है, अभी रुक जाओ, ठीक है. अभी रुक जाते हैं, थोड़ा गंदा तरीके से लिख दिया मैंने, रुक जाओ 1 मिनट मिटाती हूँ. दिस इज नॉट गुड. ओके, सो 36 से हम लोग, ओह ओके. नाउ मशीन रनिंग कॉस्ट. मशीन रनिंग कॉस्ट भी किस पे डिपेंड होता है, मशीन कितना आवर रन किया है. तो मशीन कितना आवर रन किया है हम लोग ने ऑलरेडी फिगर कैलकुलेट किया है. सो वी विल डिवाइड दिस बाय 3 to 100, ठीक है. प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट, प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट मतलब कितना बार हम लोग ने, ऑब्वियसली प्रोक्यूरमेंट मतलब जब हम लोग परचेज करेंगे तभी कॉस्ट इंकर होगा. सो कितना बार हम लोग ने परचेज ऑर्डर भेजा. सो यहाँ पे ऑलरेडी दे हैव प्रोवाइडेड द फिगर. सो वी विल जस्ट ऐड ऑफ दिस, ये ऐड करेंगे 24, 28 एंड 42. से सबको ऐड करने के बाद कितना फिगर आएगा, 50, 60, 70, 80, 90, 94. सो हम लोग इसको किसे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 94 से, ठीक है. सो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 94. ना डिलीवरी कॉस्ट, जितना बार डिलीवरी होगा उतना बार कॉस्ट इनकर होगा. सो अगेन हम लोग इस लास्ट वाले पार्ट जो है उन सबको ऐड करेंगे. सो फिगर विल बी योर 110, 140. सो यहाँ पे 140 से डिवाइड करेंगे. सो 140. सो गाइज अब एक चीज देखो, अब यहाँ पे बहुत केयरफुली समझो. सो वी नो द कॉस्ट पुल, वी नो द कॉस्ट ड्राइवर. कॉस्ट पुल कॉस्ट ड्राइवर हो गया. अब ओवरहेड निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट पुल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, जो कि हमने रेडी कर लिया. अब कैलकुलेशन करते हैं फटाफट, ठीक है. सो पहले वाले फिगर के लिए 26,550 डिवाइड बाय 36 करते हैं, ये आता है 737.5, ठीक है. 737.5. बट ये क्वेश्चन ने क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन ने पूछा हुआ है ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट बी, ठीक है. प्रोडक्ट बी के लिए ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट वाइज निकालो और एबीसी कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग. सो एबीसी कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग हम लोग ये सबका अलग अलग कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा. अब ट्रेडिशनल में तो हम लोग ने एक ही बार टोटल किया और जो जो बेसिस बोला था उसके अकॉर्डिंग ओवरहेड निकालते हैं और प्रोडक्ट में अब्सॉर्ब करते हैं. बट एबीसी कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एबीसी कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग हम लोग जितने कॉस्ट पूल और ड्राइवर रहेगा, कॉस्ट पूल और कॉस्ट ड्राइवर को जितना कॉस्ट पूल डिवाइड किया रहेगा सबका ओआर निकाल के देन हम लोग प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करेंगे. सो नाउ अभी जो फिगर आया, ये जो हम लोग ने निकाला ना, ये 7, ये आपका किस फॉर्म में है, डॉलर पर
किस फॉर्म में है आपका? प्रोडक्शन रन, डॉलर पर प्रोडक्शन रन। सो बी के लिए कितना प्रोडक्शन रन हुआ है? सो 12। बी के लिए कितना प्रोडक्शन रन हुआ है? 12। तो हम लोग क्या कर देंगे? 12 कर देंगे। सो ये हमारा कॉस्ट आ गया ये प्रोडक्ट बी के लिए, वो कितना? 8850। ठीक है, मशीन सेटअप कॉस्ट हो गया। ठीक है, ये मशीन सेटअप कॉस्ट हो गया बी के लिए 8850 निकाला। ठीक है, नाउ अगेन अभी 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 कुछ हुआ नहीं है, बस अभी हम लोग ने क्या किया, ये जो टोटल कॉस्ट था 26550, इसमें से टोटल बी के लिए 12000 यूनिट के लिए, बिकॉज ये 12 पर यूनिट नहीं है, ये टोटल 12000 के लिए लगा हुआ है, ये टोटल 12000 के लिए लगा हुआ है, नॉट फॉर अ सिंगल यूनिट। सो इसलिए हम लोग ने ये टोटल ये 8850 है, ये टोटल 12000 के लिए लगा हुआ है। अगर पर यूनिट चाहिए तो हम लोग डिवाइड बाई 12000 करेंगे, और अब भी नहीं करेंगे, हम लोग पहले सबका कैलकुलेट करते हैं, फिर डिवाइड बाई 12000 करेंगे तो पर यूनिट आ जाएगा। सो नाउ सेकेंड के लिए ओ यार, कॉस्ट पुल कितना है? 66400। कॉस्ट ड्राइवर टोटल वैल्यू में कितना है? 32100। सो दिस इज ओ आर, और ये किस फॉर्म में है? डॉलर पर मशीन आवर। किस फॉर्म में है? डॉलर पर मशीन आवर। बी के लिए मशीन आवर कितना यूज हुआ है? अब यहाँ पे एक ट्रिक समझो, अब हमको दोनों फिगर दिया हुआ है, एक तो पर यूनिट आवर पर यूनिट भी दिया हुआ है, अगर इससे मल्टीप्लाई करते डायरेक्टली हमारा डॉलर पर यूनिट में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सो लास्ट में हम लोग को 12000 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनटू मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं 0.7। सो फिगर इज, अगर नहीं समझ रहे तो मैं एक्सेल खोलती हूँ, जस्ट वेट। तो गाइस मैंने एक्सेल खोल लिया, आई होप आप समझ में आएगा। सो मैं यहाँ पे फिगर लिस्ट आउट करती हूँ। सो कॉस्ट पुल, ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है, और ओ ए आर, ठीक है, ओ ए आर, ठीक है। सो कॉस्ट पुल हमारा क्या है? मशीन सेटअप कॉस्ट, मशीन सेटअप कॉस्ट। इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या हो जाएगा हमारा? इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन नंबर, टोटल प्रोडक्शन रन, ठीक है, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वी विल गेट आवर ओ ए आर फिगर। सो मशीन कॉस्ट कितना है? 26550। टोटल प्रोडक्शन रन कितना है वो भी हम लोग निकाल लिया 36। सो नाउ ओ ए आर कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। और ये किस फॉर्म में है? ये आपका है डॉलर पर प्रोडक्शन रन। ठीक है, यहाँ तक। और हम लोग को ओ ए आर पर यूनिट वाइज एलोकेट करना है बी में। सो बी के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कितना है? इस 12। सो अगर हम लोग इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बी आवर टोटल कॉस्ट, टोटल मशीन सेटअप कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट बी। बी के लिए पूरा कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि 12 जो ये था, ये 12 सिर्फ एक यूनिट के लिए नहीं लगा हुआ था, ये 12000 के लिए लगा था। अगर आपको पर यूनिट वाइज चाहिए तो डिवाइड बाई 12000 कर दो। ठीक है, सो ये आपका किस फॉर्म में आ जाएगा? डॉलर पर यूनिट के फॉर्म में, यही हमको चाहिए। एक डन, एक कॉस्ट पुल का वी डिड इट। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कॉस्ट पुल क्या हमारा? मशीन रनिंग कॉस्ट। ठीक है, इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या हो जाएगा? टोटल मशीन आवर्स। टोटल मशीन आवर में सारे प्रोडक्ट के लिए कितना लगा हुआ है। सो ये मशीन रनिंग कॉस्ट इज 66400। टोटल मशीन आवर जो हम लोग ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया था 32100। सो ओ ए आर फिगर जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये क्या आपका? डॉलर पर मशीन आवर। हमको किसमें चाहिए? यूनिट में। यूनिट में चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई कर दो ये मशीन आवर पर यूनिट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.7 से, ये आपका हो जाएगा डॉलर पर यूनिट में, जो कि हमको यही फिगर चाहिए। सेकेंड भी हो गया, डन। नाउ नेक्स्ट, प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट। इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ परचेज
ऑर्डर। सो टोटल हमारा परचेज ऑर्डर कितना है? सो प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट इज 48,000 और हमारा नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर जो हमने ऑटोमेटिकली निकाला था दैट इज 94। इसको डिवाइड करेंगे तो ये OAR के फॉर्म में आएगा। सो और ये क्या हमारा डॉलर पर परचेज ऑर्डर ये है, ये डॉलर पर यूनिट में नहीं है। अब इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बी के लिए कितना बार परचेज ऑर्डर हुआ है? सो बी के लिए परचेज ऑर्डर 28 बार हुआ है। सो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ आपको पूछना पड़ेगा खुद से, क्या ये 28 एक प्रोडक्ट के लिए है? नहीं, ये तो सारा 12,000 के लिए था ना। सो अगेन वी विल डिवाइड दिस बाय 12,000 टू गेट इन द फॉर्म ऑफ डॉलर पर यूनिट। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, मशीन कॉस्ट में हमने 12,000 से डिवाइड नहीं किया था। व्हाई? बिकॉज ये ऑलरेडी आवर पर यूनिट में दिया था। ये जो 0.7 था ये सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट के लिए लगा हुआ था आपका। दैट्स व्हाई वी डिडंट डिवाइड बाय 12,000 फॉर द मशीन रनिंग कॉस्ट। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट हमारा है डिलीवरी कॉस्ट। डिलीवरी कॉस्ट के लिए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डिलीवरीज। ठीक है, नंबर ऑफ डिलीवरीज कितना बार हुआ है? कॉस्ट कितना है? 54,320। ऑलमोस्ट डन। अब हम लोग ऑलमोस्ट डन हो गए। 140। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये किस फॉर्म में आएगा? ये आपका जो आंसर होगा इट विल डॉलर पर नंबर ऑफ डिलीवरीज। ठीक है, तो हमको किस फॉर्म में चाहिए? डॉलर पर यूनिट के फॉर्म में। से इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किससे? ये नंबर ऑफ डॉलर पर नंबर ऑफ डिलीवरी है। सो बी के लिए कितना नंबर ऑफ डिलीवरी हुआ है? सो बी के लिए नंबर ऑफ डिलीवरी इज 30। सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 30। नाउ इसको डिवाइड कर देंगे 12,000 से, तो ये आपका डॉलर पर यूनिट में आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन आस्क्स दिस कि आपका टोटल ओवरहेड कॉस्ट बी को कितना एलोकेट कर रहे हो? सो दिस प्लस दिस प्लस दिस। सो टोटल फिगर हमको कितना आया? टोटल फिगर एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये और एक ये। सो लेट मी कॉपी। यस, कॉपी करने के बाद या इट्स 4.35। ठीक है, आंसर सी। Now let's move to the fourth. The full cost per unit of product C is 13.42 under traditional absorption costing using the direct labor hour as a basis of apportionment and 12.48 under ABC. Which of the following statement about the product C are true? Obviously difference देख सकते हो, like according to traditional हम लोग ज़्यादा overhead per unit absorb कर रहे हैं, whereas ABC में एकदम थोड़ा कम, slightly different है, ज़्यादा नहीं। तो अभी अब 3 एक्सपेरिमेंट दिया है, पढ़ते हैं और कौन सा राइट है वो बताना है। फर्स्ट क्या कहता है? The product C should not be produced as it makes a loss per unit. So they have provided us with selling price. C के लिए selling price is 13. So अगर if we are adopting traditional base for to absorb the overhead, जिसके according हमारा full cost for product C is 13.42. ऐसे देखा जाए selling price is 13, cost इतना, so loss of 0.42 is coming. Right, but if we are switching to the ABC costing system where cost is 12.48 and the selling price is 13, which seems to be in the profitable. So based if we are using the like apportioning the our overhead according to the right approach, like according to ABC, we can see product C is profitable. So यहाँ पे एलोकेशन में गड़बड़ है, ना कि हम लोग ट्रेडिशनल में जाएंगे और लॉस हो रहा है तो नहीं प्रोड्यूस करेंगे। दिस इज रॉन्ग। वी नीड ए मोर फिजिबल टेक्निक जिसके अकॉर्डिंग फेयर बेसिस पे ओवरहेड शुड बी एलोकेटेड। ठीक है, सो अब हम लोग इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, दिस इज फाइनेंशियली फिजिबल। ये लॉस में क्यों था? बिकॉज वी आर नॉट अपोर्शनिंग आवर ओवरहेड कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द फेयर बेसिस, इसीलिए लॉस में जा रहा था। ठीक है, तो 1 तो करेक्ट नहीं है। ठीक है, 1 तो करेक्ट नहीं है बिकॉज अब हम लोगों ने एबीसी में स्विच किया। एबीसी में स्विच करने पे क्या दिखा? प्रोडक्ट इज प्रॉफिटेबल, और प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल तो क्यों ना प्रोड्यूस करें हम लोग, है ना। सो 1 इज रॉन्ग। सो अब देखो यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक, 1 रॉन्ग होगा तो ए और बी हमारा
आंसर नहीं होगा. ए और बी ऑप्शन इज आउट. सी और डी विल बी द राइट आंसर. लेट्स सी now. Next, one of the reason for cheaper unit cost under ABC is lower number of production runs needed for product C. So now अगर देखा जाए प्रोडक्ट सी में नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कितना बार हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 8 बार. वेयर हाईएस्ट नंबर ऑफ किस में हुआ है, 16 में. सो नाउ इफ वी विल यूज एबीसी कॉस्टिंग, जो ये आपका मशीन सेटअप कॉस्ट है, सी को आप थोड़ा जाएगा, है ना. पहले तो हम लोग मशीन आवर के अकॉर्डिंग या फिर डायरेक्ट लेबर के अकॉर्डिंग इक्वली प्रोपोर्शन कर देते, विच इज रॉन्ग. सो नाउ फेयरली बेसिस में देखा जाए मशीन सेटअप कॉस्ट कब राइज होगा, जब हम लोग मशीन प्रोडक्शन सेटअप जितने बार करेंगे उतना बार रेज होगा. अब सबसे ज्यादा सेटअप तो ए के लिए लग रहा है, सो इसमें से मेजोरिटी ऑफ कॉस्ट किसको जाएगा, ए को जाएगा, है ना. ए को जाएगा, सी को नहीं जाएगा. सो यस ऑफ कोर्स दिस कुड बी द रीजन जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट चीपर आया हो, है ना, क्योंकि फेयर बेसिस पे अब एलोकेशन हुई ना कॉस्ट. नाउ थर्ड, switching to ABC is unlikely to change gadget company decision about product C as the unit cost is only 7.5%. Let's read this sentence one more time. Switching to ABC is unlikely to change gadget company decision about product C as the unit cost change is only 7.5%. See, I know like change in cost is very little, but obviously it will change management decision because the earlier the product was in the loss, now it is in the profit. Obviously company will produce this product, they will not stop the production for this product. Okay, so obviously there is going to be change in decision. That's why 3 is wrong, so only 2 is correct. Now 5, which of the following statement concerning ABC are true? Okay, so first statement is ABC always make a big difference to overhead allocation. Not much, है ना. It will not always make, always never. So whenever you see the always never, just be careful. It will not always make big difference. Sometimes differences will also be small. So that's why 1 is correct. Incorrect, sorry. Identifying the driver of cost does not change the fact that fixed cost cannot be controlled, so real saving cannot be made. No. If we will identify the cost driver, suppose if we will look at the question back again. So if we identify the cost driver for machine setup cost, suppose machine setup cost driver is production run. So now if we will lower the number of production run, the cost will automatically be reduced. ठीक है, so that's why this sentence is incorrect. So both are false. Okay, so we are done with this part.